Hi. Very good evening to all of our viewers who has joined us in this program. A warm welcome to the show, and you're watching the YouTube channel Skepta. I'm your host, Dr. Mani Iyer. Before we start, I request all of you to kindly please subscribe to this channel, like this video, and share this video with all your friends and relatives and known persons. And also don't forget to press the bell button for notifications. So, hello everyone. Welcome to this very important conversation. We talk for hours about a child's report cards and career, but when do we talk about their emotional safety? Today, schools में हम बहुत ज्यादा साइलेंट प्रेशर, एग्जॉशन और एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ challenges विटनेस कर रहे हैं in young children, from relentless school bullying to intense pressure from the system, like being publicly singled out or target होने के, the reality has become extremely and very deeply alarming. As an ecosystem, हम अक्सर इन बिहेवियर चेंजेस को मिस कर देते हैं या उन्हें टेम्पररी फेस बोलकर डिसमिस कर देते हैं, लेकिन उन हंसते हुए चेहरों के पीछे चल रहे डर और साइलेंट ब्रेकडाउन को डीप क्लिनिकल लेवल पर समझना आज हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है. To this, to decode the single distress through a clinical lens and to help us make our homes and schools a truly safe haven, we would like professional psychologist and counseling psychologist, behavioral therapist, and the founder of Sukoon Nest, Ms. Shivanshi Mishra, to welcome. We are welcoming Shivanshi Mishra. Shivanshi ji, welcome to the session. So, Ms. Shivanshi Mishra is a very renowned counseling psychologist at Sukoon Nest, leading holistic mental health and community well-being initiatives. She holds a master's degree in clinical psychology, as well as certified career counselor, and also has more than 3 to 4 years of experience in counseling, psychotherapy, and behavior facilitation. Her work spans diverse populations across India, Bangladesh, Africa, and the United States, where she had led mental health and social behavioral change initiatives. She specializes in behavioral and cognitive therapies, expressive art therapy, and child, adolescent, and indigenous counseling, supporting individuals across all stages of life. She also holds a professional certification in counseling and psychotherapy and positive mental health and emotional intelligence training. Welcome to this program, Shivanshi Mishra ji. A very warm welcome to you. Now, Shivanshi ji, whenever we Yes. notice a sudden emotional or behavioral shift in children, लोग अक्सर उन्हें कहते हैं to be strong, or they just brush it off as a temporary phase. But as a clinician, why do you think it is critical to first acknowledge this silent distress? इस current situation में बच्चों के emotions को validate करना क्यों सबसे पहला और सबसे important step है? Over to you, Shivanshi ji. Really, thank you first of all ये opportunity के लिए and especially thank you for this question because what I can see मेरे practice में there is a shift, एक shift आया है हमारी जैसे हमारी generation में या पुरानी जो generation थी
Now this generation is bit different because this generation is जो डेवलप हो रही है, आसपास इतना ज्यादा कंपटीशन है, दे आर हैविंग एआई, दे आर हैविंग एक्सेस टू सोशल मीडिया. सो ऑलरेडी ये जनरेशन जो डेवलप हो रही है, ये कांस्टेंट प्रेशर में डेवलप हो रही है. नाउ जो ये जनरेशन कांस्टेंट प्रेशर में डेवलप हो रही है, व्हाट दे आर फेसिंग, कि पेरेंट्स या सब जो जब भी किसी के पास ये जाते हैं, दे ब्रश इट अप बाय सेइंग दैट तुम ये वाली जनरेशन जो तुम्हारी जनरेशन है ना, काफी दे आर वेरी वीक. वो नहीं समझ पाते लाइक हमारी जनरेशन ने कितना कुछ सहा है, बट दे स्टार्टेड कंपेयरिंग. मतलब आपके पास आपका बच्चा गया है कि आई एम डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेइंग कि स्टार्टेड टू कंपेयर कि हमारी जनरेशन तो तुम्हारी जनरेशन, या उसको देखो उससे कुछ सीखो. सो यहीं से जो बच्चे का जो है ना वो ब्रेक पॉइंट आ जाता है. बिकॉज जिस पर्सन को वो अपना सेफ स्पेस समझता है, और जब वो उसके पास जाता है और वो बोलता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश भी करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड इज शेयरिंग यू समथिंग, तो वो स्टेप लेना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, उस बच्चे के लिए. तो और जब वो बोल रहा है तो यानी कि वो कितने स्ट्रेस में है. अब एज अ पेरेंट या एज अ पर्सन जो उस बच्चे के साथ है, मे बी एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, जो भी है, जो उस बच्चे के साथ क्लोजली वर्क कर रहा है, व्हेन दे से कि उसको स्टार्ट कर लेते कंपेयर करने में, या उसको नो लाइक उसको कंपेयर करते हैं या उसकी चीजों को ऐसे ब्रश ऑफ कर देते हैं, चाइल्ड फील इनवैलिडेटेड. चाइल्ड को लगता है कि आई गेस इट वुड बी अ बिग थिंग, कि हो सकता तो मैं ही गलत हूं, या मैं ही उस चीज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा हूँ. बच्चे के दिमाग में तुरंत ये आता है कि जब मेरे मम्मी पापा ने वो चीज को ब्रश ऑफ कर दिया, इसका मतलब वो चीज बड़ी नहीं है, या मेरे मम्मी पापा नहीं समझ सकते. तो वैलिडेशन इज द फर्स्ट स्टेप जो हर एक पेरेंट को, हर एक पर्सन को जो बच्चे से के साथ वर्क कर रहा है, वो करना चाहिए. एंड वैलिडेशन मीन्स कि यस आई एम लिसनिंग टू यू, ठीक है, क्या हुआ मुझे बताओ, आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. ये बच्चे पे ना, आप बच्चा पे जब ये ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप करेगा, देन बच्चा आपको अपनी सेफ स्पेस समझेगा. सो द वैलिडेशन इज द की, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमें चीजों को उसके एक्सपीरियंस को वैलिडेट करना चाहिए, एंड इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. Yeah, thank you very much, Shivanshi ji. Thanks for the very nice answer to that question. And yeah, we'll slightly shift the share in this now. Currently, the academic procrastination as a shield, जो बोलते हैं. Today, almost every parent witnessed this. A child crying during homework, avoiding school completely, or staying glued to their screens. बड़ों को अक्सर लगता है ये उनका आलस या जिद है. But to explain this avoidance as a psychological defense mechanism, parents or teachers physically abuse them, physically, और somatically अब्यूज कर रहे हैं. कैसे फर्क समझेंगे कि बच्चा सच में हलास कर रहा है, या वो किसी डीप इमोशनल डिस्ट्रेस के वार्निंग साइंस शो कर रहा है? इसको हम कैसे पता कर लें? यस सर, अगेन द थिंग इज लाइक दैट कि अक्सर क्या होता है जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, बच्चे के साथ कुछ बुली हुआ या वो किसी ट्रॉमा से गुजरा है, तो यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स को क्या लगता है, सडनली बच्चा ना मुझे आलस करने की कोशिश कर रहा है, या वो उसका काम में अब मन नहीं लग रहा, अब वो पढ़ना नहीं चाहता. एंड मैंने ये ऐसा मेरे कई सारे केसेस में देखा है. सो पहला चीज क्या है, सपोज आपका बच्चा पहले परफॉर्म कर रहा था, या पहले थोड़ा सा खुश खुश रहता था, बहुत हैप्पी गो नेचर काइंड ऑफ था, तो आप सडनली अगर देखें कि उसके बिहेवियर में सडन शिफ्ट आ रहा है, एंड बाय सडन आई मीन अ स्मॉल स्मॉल शिफ्ट, लाइक व्हेन इट कम्स टू लाइक कि वो बच्चा जो पहले खुश रहता था वो सडनली बहुत अवॉइड करने लगा है, लोगों को, चीजों को अवॉइड कर रहा है, राइट. या फिर क्या कहते हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, जो पहले बहुत बोलता था और सडनली वो बात भी नहीं कर रहा है. सो ऐसे से कुछ शिफ्ट आप जब नोटिस करेंगे, एंड ये शिफ्ट आप जब देखेंगे कि ये लेजीनेस से कैसे अलग है, क्योंकि जो बच्चा पहले पढ़ाई में करता था या यूजुअल अपनी एक्टिविटीज करता था, अगर वो सडन ये शिफ्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है. एंड उसके कुछ वार्निंग साइंस हो सकते हैं, स्टार्टिंग विद द सोमैटिक साइन जो आपने पूछा, जैसे उसकी वैन या स्कूल से रिलेटेड कुछ भी उसको बोलो,
उसको सडनली ना दर्द होने लगता है पेट में, या सिर में दर्द होने लगता है, या बॉडी में कहीं सडन पेन आने लगता है, राइट? आप यूजुअली उसको जब जब कह रहे हो कुछ काम करने को वो चीज कर ले रहा है, बट एनीथिंग रिलेटेड टू स्कूल और एनी स्पेसिफिक प्लेस, वो बच्चा जैसे उस चीज का नाम सुनता है तुरंत उसके पेन होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, नोजिया फील करने लगता है बच्चा। एकदम कहो, अगर आप बोलो कि चलो मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ, वो सडनली चक्कर खा गया और गिर गया नीचे। सो दीज आर द like some somatic signs that we can see. Then we have some behavioral changes. बात नहीं कर रहा है किसी से, जो पहली एक्टिविटीज कर रहा था अब वो एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खो दे रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल को अवॉइड कर रहा है, अपने आपसे बात नहीं कर रहा है, उसके आप मूड में देखो कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा है, चीजें जो मतलब जो बच्चा थोड़ा बहुत शांत है काफी डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है, फिर सडन बिहेवियरल चेंजेस उसके अंदर आए। देन कम द हाइपर विजिलेंस विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सपोज आपका घर का एनवायरमेंट बहुत सेफ है, आपने अपने बच्चों को मान लो डांटा या कभी कुछ ऐसे नहीं किया है, या मान लो बहुत सेफ इन्वायरमेंट में उठे हैं, ठीक है, बट सडनली आप देखते हो आप जरा सा भी हाथ अगर रेस करते हो वो सडनली से डर जा रहा है, या मतलब ऐसे अपने आप को ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, एंड यू नो द फैक्ट कि मैंने तो कभी अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठाया घर पे, सो ये सडन डर, ये जो होता है ना रिफ्लेक्स में खुद को बचाना, ये कहाँ से आया? देन सेकेंडली चौकन्ना रहना, राइट? बेड वेटिंग भी कर रहा बच्चा अगर कर रहा है, या फिर रात में सडनली उठ जा रहा है एंड वो तुरंत घबराहट होने लग रही है उसे, राइट? क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये सामने से अपनी चीजें नहीं बोल सकते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीजें चल रहा है, इतना पता है कुछ डेंजर जोन है, बट क्या है, क्या चीजें मेरे साथ हो रही वो नहीं पता चल पा रहा है। सो दीज आर सम साइंस जिसको हम लोग जब देखेंगे एज अ पेरेंट, हम मॉनिटर करेंगे, तुरंत वी शुड कंसल्ट सम प्रैक्टिशनर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, और एज अ पेरेंट हमें तुरंत उससे उस बात को पूछना चाहिए, एंड अगर वो मान लो आपसे नहीं शेयर कर पा रहा है, टेक द हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अगर वरना अगर ये चीज एक्सट्रीम पे जा सकती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो दीज आर सम साइंस दैट पेरेंट कैन नोटिस, इधर इट वुड सिमेटिक, इधर इट वुड बी बिहेवियर, इधर इट वुड बी उससे उसके मूड को लेकर सडन फ्लक्चुएशन एंड ऑल दैट, और इधर वुड बी हाइपर विजिलेंस। सो दीज आर सम साइंस दैट पेरेंट्स कैन नोटिस एंड कॉन्टैक्ट विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। Thank you very much, जी। ये red flags और warning signs बताने के लिए, so that parents can watch out for these situations. Now, recognizing these warning signs is definitely the first line of defense. Now, but we need to move on to real life solutions, real time solutions, and we need to have some abstract tools and big clinical words. And these abstract tools and clinical words don't work with the young kids. I know you have brought a special live activity for our audience. मैं चाहता हूं आप हमारी ऑडियंस को और सभी पेरेंट्स को इस लाइव टेक्निक के थ्रू गाइड करें। ओवर टू यू शिवानी जी। सो सब हम लोग जब इन बच्चों की बात करें, ऑब्वियसली इनके लिए खुद को एक्सप्रेस करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो यूजुअली ये एक्टिविटी मैं मेरे जो हमारे यहाँ बच्चे जब आते हैं सुकून नेस्ट में, मैं उनके साथ करती हूँ, इट्स मोर लाइक अ प्ले थेरेपी काइंड ऑफ थिंग। सो पहला है द बलून ब्रीथ। सो द बलून ब्रीथ में क्या हम लोग करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि सपोज करो योर टमी, ओके, सिट कंफर्टेबली, एंड ऐसे सपोज करो कि तुम्हारे टमी में एक बलून है, राइट? So get comfortable, sit comfortably, keep your back straight and close your eyes. तो ये पहला इंस्ट्रक्शन होता है। सेकेंड, इनहेल एंड ब्लो द बलून। अब इसमें हम बच्चे को कहते हैं कि अब ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास जो बलून है उसमें तुम अपने सारे जो तुम स्ट्रेस स्ट्रेस जो भी फील कर रहे हो उसको उस बलून में डाल रहे हो। सो धीमे धीमे अपनी ब्रीथ को स्लो डाउन करो, अपनी नोज से इनहेल करो और उस बिग बलून को इमेजिन करो अपने टमी में। देन थर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा स्कूल से परेशान है तो वो स्कूल का स्ट्रेस उसमें चला जाएगा, अगर वो बच्चा कहीं कुछ से बुली हो रहा है या कुछ उसी से स्ट्रेस आउट है वो उसमें चला जाएगा, योर सैडनेस, योर एंगर, एवरीथिंग विच इज गोइंग इनसाइड यू, वो सब उस बलून में तुम फिल कर दो, उस बलून को उससे। सो लाइक टेक अ डीप ब्रेथ एंड नाउ फिल दोज थिंग्स, जो जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है उस बलून को उससे फिल कर दो। देन एक्सहेल एंड लेट इट गो। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप, अपना मुंह खोलो और अब जो भी तुमने ब्रीथ इन किया है, वो जो बलून को तुमने फिल फिल किया है, अब उसको छोड़ दो। तो ये जो है बच्चे को ये एक्टिविटी कम से कम 3 टाइम्स कराते हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चा पैनिक मोड में चल रहा होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में चल रहा होता है, अब वो आराम से खुद को
थोड़ा कंट्रोल करना, अपने स्ट्रेस को रिलीज करना एक सेफर मैकेनिज्म में सीखता है। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, जब वो स्कूल में जा रहा है, जब उसके पास या किसी ऐसी सिचुएशन में जा रहा है जहां उसके पास कोई उसका पेरेंट्स या कोई ऐसा पर्सन नहीं है, एंड ही फील दैट स्ट्रेस, तो क्या कर सकता है? सो दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट एक्टिविटी विच इज बलून बीट। सेकेंड एक्टिविटी सेफ बबल। ओके, क्रिएट अ सेफ प्लेस। सो होता क्या है, जब बच्चे ऐसे ट्रोमेटिक सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो उनके लिए उनको एक सेफ स्पेस की जरूरत होती है जहां पे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। तो यूजुअली मैं पेरेंट्स को क्या कहती हूँ, इफ यू कैन क्रिएट दैट सेफ स्पेस एट होम तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। तो आपको भी पता रहेगा कि अब मेरे बच्चे को ना कुछ बोलना है जो मुझसे नहीं शेयर कर पाया है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने रूम में आपके घर में एक रूम लिया और उसमें उसके लिए छोटा सा टेंट हाउस काइंड ऑफ बना दिया, और उसको बोला कि तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, यू कैन कम हेयर, इट्स अ सेफ प्लेस, नो वन इज गोइंग टू जज यू, नो वन इज गोइंग टू से एनीथिंग टू यू, तुम यहाँ पे आ सकते हो। सो व्हाट इज दैट? imagine your safe bubble. Okay, so you need to imagine that you are in a safe bubble, or a safe bubble mein no one is going to hurt you, no one is going to say you anything. Then this is your safe zone. Whatever इन सेफ बबल में तुम खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो तुम कर सकते हो, नो वन इज गोना जज यू। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तुम बोलो उस चीज को। सो दिस इज कंप्लीटली योर सेफ जोन। देन मेक इट योर्स। आप उसको योर्स कैसे बना सकते हो? यू कैन फिल इट द थिंग्स दैट मेक यू फील हैप्पी। यू कैन लाइक पेट्स हो गया, फैमिली हो गई, तो मैं यूजुअली पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप उन बच्चे के लिए उसकी कोई फेवरेट टॉयज रख दो, कोई कलरिंग बुक्स रख दो। या स्पेशली बेस्ट पार्ट क्या रहता है, कलर्स, पेपर्स, और ये सबसे क्या होता है, बच्चा जो आपको वर्बली नहीं बोल पा रहा है, वो उस पे मे बी ड्रॉइंग के माध्यम से उसको एक्सप्रेस कर सकता है। व्हेन यू सी योर चाइल्ड इज स्क्रिबलिंग ऑन द पेपर लाइक एग्रेसिवली, वेंट आउट तो हुआ हुआ, आपको ये भी पता चला ओके देयर इज समथिंग इनसाइड व्हिच इज गोइंग इन माय चाइल्ड, तो आपने उसको एक सेफ स्पेस दे दिया, वहां पे वो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। नाउ कम बैक एनी टाइम, लाइक वेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड और स्केयर्ड आउट, तुम आओ इस सेफ स्पेस पे बैठो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, एंड दिस इज योर सेफ प्लेस। तो ये बच्चे को एक समझ में आता है, ओके लाइक आई एम हैविंग, मतलब पूरे वर्ल्ड में मेरी एक खुद की जगह है जहां आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, एंड आई कैन बी वॉट आई वॉन्ट टू बी, एंड नो वन इज गोना जज मी आउट। एंड पेरेंट्स को भी अच्छा ये लगेगा कि पेरेंट्स को पता चल जाएगा, ओके समथिंग इज गोइंग ऑन इन माई चाइल्ड लाइफ, अगर वो मुझे ऐसे नहीं बता पा रहा है बट आई कैन सी सम ऑफ द साइंस, एंड तुरंत आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हो। Okay, Ji. Thanks. That is really very nice and very. It was a very nice, therapy that you had, such techniques, and this play therapy technique is, I think, will be definitely very useful to the children and reduce their stress and all that. So, and it is a very simple tool. So it was but yet very powerful. Thank you. That was incredibly great, Shivanshi ji. So, but when a child goes back to, but what happens now? She does this, but he or she does this. But when the child goes back to the same competitive system and the same very harsh school environment, तो चीजें ओवरनाइट बदल जाती है। तो keep them safe from these daily pressures, हम उनको उनके सराउंडिंग इकोसिस्टम में, चाहे वो घर हो या स्कूल, कौन सी प्रैक्टिकल साइकोलॉजीज, बाउंड्रीज या डेली डायलॉग शिफ्ट्स कल्टीवेट करने चाहिए? क्वेश्चन। सो द डायलॉग शिफ्ट दैट वी कैन डू इज लाइक एज अ पेरेंट, क्या होता है कि बच्चा स्कूल से आता ही है, पेरेंट वुड बी लाइक आज टेस्ट हुआ था उसके क्या रिजल्ट हैं, आज ये था उसके क्या रिजल्ट है, स्कूल में क्या किया, क्या वो ये वो कंप्लीट किया, ये सबमिट किया, ये किया, वो किया। आते ही बच्चों से आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हो विच इज टोटली सेंट्रिक टू देयर स्टडीज, तुमने क्या किया स्कूल में। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि हाउ यू आर यू फीलिंग एग्जॉस्टेड, कैसा लग रहा है, स्कूल कैसा था, अच्छा आप कैसे हो स्कूल कंप्लीट होने के बाद। उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि ओ my parents are thinking about me rather than just thinking about studies or marks and like that, because I have seen the parents who are coming to me like कि हमारा बच्चा जो है I feel like she is not performing well, so there could be some IQ deficit or something like that। मतलब
coming from a parent's mouth just because कि उनका बच्चा जो 98 स्कोर करता था अब 97 या 96 स्कोर कर रहा है, तो आप समझ रहे थे दैट प्रेशर जो पेरेंट्स क्रिएट कर रहे हैं बच्चों पे. सो वी नीड दैट डायलॉग शिफ्ट कि आज टेस्ट में कैसे से वी डोंट हैव टू आस्क दैट आज टेस्ट कैसा था. स्टार्ट बाय आस्किंग तुम कैसे हो, हाउ वाज योर डे, ओके, लाइक दिस यू नो. तो उनको अच्छा लगेगा कि माय पेरेंट्स इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी रादर देन लिसनिंग टू द मार्क्स दैट आई हैव गॉट. सो वो अच्छा लगेगा उनको, उनको एक सेफ स्पेस खुद से अपने आप क्रिएट करने का उनको लगेगा कि ओके आई एम इन अ सेफ स्पेस ना, आई कैन से व्हाटएवर. क्योंकि अक्सर ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे को ये डर लगता है कि अगर गलती से मेरे पेरेंट्स के पास चीजें पहुंच गई, आई डोंट नो मुझसे कितना ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे. सो यू हैव टू टेल देम ओके आई डोंट वांट, मैं तुमसे डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा मार्क्स, ठीक है अभी आ रहे अभी नहीं आ रहे, समथिंग लाइक दैट. सो इट्स लाइक दैट ट्रांजिशन वी नीड टू मेक. सेकेंड, द ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट बाउंड्री. सो सी अब बच्चा जो है सपोज समथिंग हैपेंड विद दिस चाइल्ड, ओके मे बी बुलिंग और समथिंग, अब वो वापस उस एनवायरमेंट में जा रहा है, सेम स्कूल स्ट्रक्चर. मान लो आपने उसका स्कूल भी नया चेंज करा दिया, आप उसको जितना समझाओगे बट उसके दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी. तो we can give him maybe a keychain or maybe a small toy, you know, something teddy bear kind of thing, जो उसके लिए एक सेफ कार्ड की तरह काम करेगा. ओके सी मम्मा इज नॉट विल बी नॉट विथ यू इन स्कूल बट आई नो यू आर ब्रेव. एंड अगर कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी ना लगे कि ओके मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है, यू हैव दिस की चेन, ओके इट्स मम्मा स्पेशल की चेन, कीप इट विथ यू. तो बच्चे को थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा. एंड दैट्स फॉर हमारे लिए अरे की चेन ही एक नॉर्मल सी चीज है, पर उस बच्चे के लिए इट्स लाइक द पेरेंट लव दैट ओके इफ दे आर नॉट देयर दे हैव सेंड मी समवन कि जिसके साथ मैं रहूंगा and I will be safe, I'll be protected. So that transitional object would be there. Then the stigma detox. What we need to do is that what I have seen in schools, you know, when I am working with different counselors, so school counselors क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ना स्कूल काउंसलिंग को एक पनिशमेंट की तरह देख लिया जाता है कि तुम तमीज से क्लास में नहीं बैठो, जाओ स्कूल काउंसलर के पास. वो लाइक दैट्स लाइक अ पनिशमेंट. मतलब हम लोग पहले से बच्चे के दिमाग में डाल दे रहे हैं कि इफ यू आर गोइंग टू अ काउंसलर इट्स अ पनिशमेंट, नॉट बाय चॉइस और समथिंग आपके लिए अच्छा है, बट एक पनिशमेंट हम आपको दे रहे हैं. सो हमें वो स्टिग्मा हटाना पड़ेगा मेंटल हेल्थ से कि इट इज नॉर्मल. तो अभी बच्चे को मान लो कुछ भी दिक्कत हो तो वो स्कूल काउंसलर के पास जा सकता है. इसलिए स्कूल काउंसलर्स रखे जाते हैं जिससे वो बच्चे को स्पेसिफिकली अगर बच्चा किसी भी चीज में स्ट्रगल कर रहा है तो इसलिए क्या प्लान आउट कर सकते, कैसे कैसे उसकी काउंसलिंग कर सकते, कैसे उसको उस जिस पिट में वो जा रहा है उस पिट से कैसे वो बाहर निकाल सकते. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल काउंसलर. बट स्कूल काउंसलर को या तो कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए रख दिया जा रहा है या तो उसको इसलिए रख दिया जा रहा है कि एक पनिशमेंट की तरह पे कि जाओ तुम स्कूल काउंसलर के पास. सो वी नीड टू destigmatize that school counselor role or mental health professional role. Apart from that, the unconditional positive regard that the student can get from her teachers या फिर अपने पेरेंट्स से या अपने आसपास के लोगों से. ओके वी आर हियर टू लिसन यू, ओके हम लोग हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा वी आर हियर. ओके वी नीड टू क्रिएट दैट सेफ environment for these child because as we can see sudden rise in all these cases of suicide cases especially in the बच्चे जो 5th से लेकर 6th 7th 8th या 10th स्टैंडर्ड तक के, मतलब वो छोटे छोटे बच्चों को अगर इतना बड़ा कदम लेना पड़ रहा है बिकॉज दे ट्राइड टू रीच आउट टू सम पीपल एंड दे सेड ओके अगर तुमने अगली बार ऐसे किया ना मैं तुमको प्रिंसिपल के पास भेज दूंगी. लाइक रियली इफ अ चाइल्ड इज कमिंग टू यू क्रिएट दैट सेफ एनवायरमेंट बिकॉज यू आर हैविंग द पावर कि आप बच्चे का भविष्य बदल सकते हो. सो इफ यू आर हैविंग दिस पावर प्लीज यूटिलाइज इट. आप उसको सुनो तो एक्चुअली आप उसके बाद आपको जो करना होगा आपको उस पर कोई मीटिंग बिठानी होगी, आपको उसको उस चीज के बारे में सर्च करना होगा कि सच बोल रहा है गलत बोल रहा है क्या बोल रहा है, बट आप उसकी बात तो सुनो. स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलरली क्रिएटिंग दैट सेफ एनवायरमेंट with unconditional positive regard. So these things if we do, so we can create a safe environment for that particular child. Thank you very much, Ji. So those were some brilliant insights, शिवांशी जी. So we can say now that अगर आपको आज के इस mental health सिनेरियो को देखते हुए हमारे प्योर इकोसिस्टम्स ऑफ पेरेंट्स, पूरे इकोसिस्टम ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल्स को एक फाइनल प्रोफेशनल गाइडलाइन या
टेक अवे देने हो तो आपकी कोर सर्वाइवल मैनुअल क्या होगी? So, sir, if I want to give a takeaway from our whole session, कि आजकल के सिनेरियो में जो मुझे जो लग रहा है, जो चीजें हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अभी भी स्कूल में लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, रिगार्डिंग पॉक्सको, क्या चीजें हो रही हैं बच्चों के साथ, क्या नहीं होना चाहिए, बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। बिकॉज हमें लगता है कि हम अपने बच्चों से अगर फोन दूर कर दें या कोई भी गैजेट दूर कर दें तो सारी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, नहीं होंगी। वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। अब हमें उन बच्चों को इंडिपेंडेंट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अवेयरनेस लाके कि ओके इफ समथिंग इज हैपनिंग विथ यू, इफ यू फील दिस इज डेंजरस फॉर यू, कम टू मम्मी, कम टू पापा, गो टू टीचर, गो टू प्रिंसिपल। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम बच्चों के अलावा टीचर्स में भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। केवल एक लौटे स्कूल काउंसलर्स के उससे हर चीज नहीं हो सकती है। आई हैव सीन रिसेंट डाटा ऑफ WHO कि पहली बात तुम्हारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही कितने कम है। लाइक 8 लोगों के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। स्कूल काउंसलर्स का इससे भी बुरा हाल है। सो इफ स्कूल काउंसलर हैज बीन अपॉइंटेड इन अ स्कूल, सो केवल बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं बट टीचर्स के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम। क्योंकि अक्सर क्या होता है, टीचर्स सब कुछ ऐसे इश्यूज देखते हैं बच्चों में, सो दे उनका एक माइंडसेट हो जाता है कि अरे ये बच्चा ऐसा ही है, ये बहुत चीजों से भागने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ है या लाइक दिस। बट अगर उनको ये चीजें पता होंगी, कम से कम वो बच्चों को सही गाइडेंस देकर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भेज सकते हैं। सो टीचर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, अपार्ट फ्रॉम दैट पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिससे हम लोग मेंटल हेल्थ को डिस्टिग्माइज कर सकें कि इट्स नॉर्मल, इट्स ओके टू आस्क हेल्प। हर चीज आपको अकेले खुद से नहीं वो बर्डन झेलना है। दैट्स व्हाट वी बिलीव। इवन हम सुकून नेस्ट में भी अपने पेरेंट्स को या बच्चों को जब हम टीचर्स के साथ ये बात करते, वी ऑलवेज से इट्स ओके नॉट टू बी ओके and you have to take help. Okay, so this is the thing that we always say. Second one would be creating a safe environment. And how we can create a safe environment, like the peer friendship, like बच्चों को ये बताना कि this is person who is sitting with you or who is in your class, we are like a family. हम लोग को एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को बुली नहीं करना है। बुलिंग को नॉर्मलाइज नहीं करना है ये कह के कि अरे ये तो आजकल के बच्चों में होता रहता है, तू मैं नो। अगर आप बुलिंग को नॉर्मलाइज करने लगोगे, सो फिर वो चीज नॉर्मलाइज होके एक्सट्रीम केस में चली जाती है। यू डोंट हैव टू नॉर्मलाइज बुलिंग। वो अगर कोई बच्चा किसी बच्ची को कुछ या किसी बच्चे को कुछ कमेंट पास कर रहा है, द टीचर और द पर्सन, इवन उसके खुद के फ्रेंड्स, इफ दे कैन टेक स्टैंड, इट इज बेस्ट। मतलब कि आप खुद ही में एक दूसरे को एक सुपर हीरोज या समथिंग कैसे अपने पीयर्स के बना रहे हो। सेकेंड थिंग वी कैन डू दैट। थर्ड वन वुड बी सेफ स्पेस बनाना एट स्कूल, एट होम, वेयर एवर चिल्ड्रन इज गोइंग, वी कैन वर्क ऑन दैट कि कैसे बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर सके। वार्निंग साइंस को पहचानना, उसके बारे में एजुकेट करना कि ओके इफ यू सी दीज वार्निंग साइंस, आपको तुरंत अपने किसी ना किसी को कंसल्ट करना चाहिए। बच्चों को भी समझाना कि तुम दुनिया की कोई भी गलती कर लो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम हमें आके आके बताओ। ऐसी कोई गलती नहीं होगी कि तुम हमसे शेयर करोगे एंड उसके लिए हम तुम्हें अबैंडन कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बात है, मे भी हो सकता हम तुम्हें डांटे अगर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बट वी आर विथ यू, ये बच्चे को बोलना। एंड मैं हर एक स्टूडेंट को सिर्फ यही कहना चाहूंगी दैट आप स्कूल जाते हो, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, राइट? सो यू हैव that much confidence, you should have that much confidence in yourself, and it's okay if you are not feeling all right. We are here to help you out, you can talk to us, okay? एंड अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपने टीचर्स के साथ शेयर करो। एंड अगर आपको लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, सो वी हैव लाइक द सुकूननेस टीम इज हियर, इवन गवर्नमेंट इज देयर, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर देयर फॉर यू, प्लीज शेयर इट, राइट? एंड बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करानी चाहिए जिससे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, स्पेशली बॉयज, बिकॉज इट्स लाइक कि बॉयज रो नहीं सकते, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिस्टिग्माइज करने के लिए इट्स ओके टू क्राई, क्राइंग इज नॉट अ साइन कि यह बच्चा जो है रो रहा है तो बहुत वीकनेस का साइन है, नहीं। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग करेंगे, देयर वुड बी अ चेंज एंड हम लोग अपने यूथ को बचा सकते हैं। सो आई विल जस्ट से दैट ओनली। Thank you very much. It's the right thing, and what you said is
हम हमारा हो यूथ का बचाने का बहुत बहुत बड़े जिम्मेदारी है हमारे पास, बिकॉज ड्यू टू द हार्श सिस्टम and the competitive examinations and all those things, and very limited amount of resources in this country. So there is a very high heavy competition system, and बच्चों जैसे जा रहे हैं, जैसे कारखाना में जा रहे हैं ना, वैसे जैसे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आ रहे हैं। एंड इट्स सो कॉम्पिटिटिव। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम या जो भी देखो, वॉट एवर सब्जेक्ट और वॉट एवर काइंड ऑफ कैरियर, they will keep on entrance exam. Every college keeps an entrance exam. Every and that maybe to collect fees. I don't know, but this is very, putting a lot of pressure on the student as such. He has to prepare for academics, he has to prepare for his regular board exams, and then he has to, there is nothing, he doesn't get a break at all. He has to go for CAT exam, he has to go for GATE exam, he has to go for that exam, IIT exam, JEE exam, advanced JEE exam, and every university have their own exams. एंड नीट एग्जाम, दैट एग्जाम हमने बात की इसके बारे में, लास्ट एपिसोड में भी बात की नीट एग्जाम के बारे में। तो इट इज लाइक बच्चों आर bombarded non-stop. They don't get a break at all, and sometimes what happens, I have seen myself that children just give it up, and they just they're not able to handle this kind of pressure. They are not able to handle it, and they make it so very tough. Everybody cannot be performing like an IIT engineer. I am. We are, after all, we are, say 3 crore people, right? Uh, 2.5 to 3 crore. I do not know where we are. Our number is maybe close to 2 crore. Sorry. So in that case, it is very competitive. It has become so competitive that children are facing the bulk of the pressure, and so it's very difficult for them to go through the space, and and survive this. Survival itself is a big question mark, because everybody wants to go to IIT. Everybody wants to go to NIT. Everybody wants to go to United States. Everybody wants to go to UK or Australia, and so it is a big thing. And everybody is training in Kota and other places like that. Going there and encountering heavy hardships, and and all that. So this is there has to be a little bit of humanity has to be there in the system for the children. As it, we have to empathize with these children. After all, they are not. It's not a karkhana like how robots or any other machine comes out. It gets manufactured by a robot and comes out. These are all human beings. These are all very delicate and sensitive children, and we need to take care of them. And we have. It is our responsibility. So हम अपना youth को बचाना चाहिए. ये बड़ी जिम्मेदारी है. If you are not able to do so, this country will have no future. Because we are a country of so many, we say we are a country of so many billion people, but if the state of their mental health is like this, then I'm not sure what is the future. So thank you very much, Ji. If you have any final conclusions, you may just give your final summary and conclusions, and then we can close it. Yes, so Mani sir, I totally agree with you, जो आपने कहा. It's like we are creating robots now rather than creating humans. Everyone is, going कोई किसी ना किसी रेस में, किसी ना किसी कंपैरिजन में. लाइक बच्चा पैदा होता ही नहीं, उससे पहले उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि उसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है. अरे सांस तो लेने दो उसको 2 सेकेंड. अभी तो उसको पूरा वर्ल्ड देखना बाकी. एंड यू हैव ऑलरेडी डिसाइड ये इस ऑक्यूपेशन में जाएगा, इस स्कूल में जाएगा. कोई नहीं पूछेगा उस बच्चे को क्या करना. एंड वी आर द कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा यूथ है. बट क्या रियली यूथ इज यूथिंग?
बिकॉज व्हाट वी कैन सी, यूथ या तो डिप्रेशन में जा रहा है या तो हार्ट अटैक आ रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट, इतना ज्यादा बर्न आउट, इतना ज्यादा वर्कलोड। छोटे छोटे बच्चे 10-10 चीजें कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ। मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट जैसी चीज बच्चों में मिल ही नहीं रही है, सब कुछ टूट गया, उनकी आइडेंटिटी क्या उनको पता नहीं है। दे आर लिटरली, वो होते हैं ना जो हम लोग का जो टाइटल था कि दैट द पीपल जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, उनके साइन सुनना, दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू डू एज अ पेरेंट। सी, नन ऑफ द पेरेंट्स इज बेस्ट, नन ऑफ द पेरेंट्स इज वर्स्ट। हम लोग लर्निंग, हम सब लोग पेरेंटिंग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। Just you, what you have to do it that you have to see all those signs जो आपका बच्चा नहीं कह पा रहा है, जो आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा है, और उसको बताना कि फेलियर इज नॉर्मल। हर 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 टाइम हर कोई हर चीज नहीं जीत सकता है, राइट। एंड कोई बात नहीं, तुम नहीं, अगर तुम मान लो फर्स्ट नहीं आए, सेकंड तो आए। लाइक आई हैव सीन, इफ यू हैव सीन दिस मूवी ऑफ I guess Tare Zameen Pe 2 was something like that, जो आमिर खान की थी। So he asked the autistic child कि हम लोग जीते, हम लोग फर्स्ट थे, हम लोग सेकंड आए, and she said yes sir, हम लोग सेकंड आए, and she was celebrating that second आए हैं। So this is what we need to develop, you know, कि first, second, third, these are some ranks. The main thing is what you have learned, what you have acquired. We need to celebrate बच्चे की वो hard work, वो hardship जो उसने की है। So it's high time, parents, because all of the child is different, all of the child is unique, all of the child is brilliant. So उनकी उस यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो, उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करो, and let them fly. And I assure you, if you give them all those opportunity, if you let them fly, trust me, they will bring a big change in the society. So that's what I can say, and really thank you, Manisa, for giving me this opportunity. Thank you very much, Ji. It was a great topic, and it is a very, very important topic for our society now, because as I was saying, if these people goes in the wrong way, if anything goes wrong at this sensitive and delicate stage in their life, then the entire future will go wrong. And so बार बार ऐसा नीट का पेपर आउट होना, ये सब you creates a lot of pressure and tension, and the system itself is so bad that it completely, everything will be lost. So we don't want that to happen. So that's why we have brought this program at this right time. And audience who have any questions, whatever, they can raise in this live show as well, or if not, you can put it in your comments and we will be able to, both of us will try to reply to you, each one of you, with the answers that's required. And be assured that all your questions will be answered. Thank you very much, Ji, Shivanshi Ji, for taking time out on this very important topic and having come so late in the evening on, on a Monday, on a busy working day, to come to this place and to come on the show and giving this great talk. I really appreciate the same. I hope you can come more often on these shows, and definitely we are always welcome to come on a regular basis, almost every week or whatever timeline that you might choose, and talk to our children, and try to see that at least some help is available somewhere, so that we are trying to reach out to those children who are young budding children. So, and definitely we can make some changes, even if we can make a little change in their outlook, and we can give them some kind of grounding, or in the sense people who are sinking, डूब रहे हैं लोग, उनके लिए हम एक, if you are putting a small even line, so that whatever rope line or something like that, which they can catch and they can come up in life, it will be great. So because ये समुद्र बहुत बड़ा समुद्र में वो सब लोग they are doing a rat race. So this rat race, I hope this rat race से अब बचें, at least, and try to go after what you like, what you want to do, and bring out the best in you, because
bringing out the best in you is what, because every person in this world who has born has got something really very good within them, and that is why each person can excel at at whatever their interests, to find out what you're really capable of and what is your thing. It needs a little bit of searching. Some people even say at my age sometimes we don't know. I mean, whatever, because we have done what our parents have asked us to do, but we have not done anything because on those days the options were very less, and we have done what our parents have done, and even till date we are doing the same thing. And because of a small thing at that small decision, as decision that was taken at that time, we are what we are today. So one would have liked to go in the arts, one would have liked to go in the literature, one would have liked to go in humanities, one would have liked to go in liberal arts, but we have gone into the technical side, and now I'm coming back to the arts. You can see that the very fact that I am doing these shows, I'm an engineer myself, but I am doing shows for psychology. So it is, you will know that we are what we are earning to do, and this is what we want to do, and you guys don't get caught the same way we are caught. You have to do a better job with your life and career. This is what our message is. Thank you so much, Ji. Thank you very much, Shivanshi Ji, for taking out your time and coming on the show and talking to us. So we'll see you soon. Thank you, Ji. Good day to you and good evening to you. Have a rest of the day and evening. Have a good evening. Thank you very much. So Bye thank bye. you. Bye bye. Take care.